Justice is of two types. The first justice is justice provided by God. Each and everything for living human and other creatures, each and everything is made available by God. Justice is given by God. That is not the subject matter. Here we are discussing man-made system. Under the man-made system, how much justice is available? Because, as you know, man-made system of justice is distributive justice system. What is it? Distributive justice system. न्याय को बांटा जाता है सिस्टम से. मैन-मेड सिस्टम में फॉर प्रोवाइडिंग जस्टिस वी हैव ए मैकेनिज्म. न्याय देने के लिए तीन चीजें जरूरी होती है. पहले तो रूल ऑफ लॉ, रूल, नियम. फिर उस नियम को लागू करने वाली संस्था. और तीसरा, अगर कोई विवाद हो तो उसका निर्णयन करने वाली संस्था. ये तीन चीजें जस्टिस देने के लिए जरूरी हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस रिक्वायर्स थ्री एसेंशियल कंपोनेंट. अगर ये नेशनल लेवल में देखें तो एक सिस्टम है, उसमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स आर मेड फॉर डीलिंग विद नेशनल प्रॉब्लम. कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क is given for each and every country, especially those who having written constitutions. National system is arranged within the state sovereignty. Insofar as in globalizing world now requires transnational law. National law is not able to deal with international problems or global problems. For providing justice in global problems, the national law is inadequate, insufficient to cope up with the global problem. For example, poverty-stricken, disadvantaged society of the world, whether they are countries, people, whatever, disadvantaged people of the world, they are poverty-stricken. What they are? Poverty माने गरीबी. Poverty-stricken, गरीबी से पीड़ित, जिसको हम आज की तारीख में गरीबी की रेखा के नीचे ऐसे करके संकेत देते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन. But below poverty line, people within the whole world, they are 40%. 40% population of the world is under the poverty line. Poverty stricken, गरीबी से पीड़ित. गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप माना गया है. वर्ल्ड प्रॉब्लम है. 40% of the population of the world is poverty stricken, and in searching the justice, their due, their dignity of life, well living, standardization of life, civilization of life, education, health, nutrition, transportation, knowledge, everything is required for the development of society. Everything. But poverty-stricken countries or their population is suffering.
miserable conditions are there, poverty stricken, and till today the international law, existing norms, and the existing norms and the institutions are unable to solve the world problem. तो इसलिए ग्लोबल जस्टिस में एक समस्या ये है, हमको ट्रांसनेशनल लॉ की जरूरत पड़ती है। अब ग्लोबलाइजेशन को आप पीछे नहीं हट सकते, इसलिए ये बात ये है कि क्योंकि कॉमर्स के फील्ड में, नॉलेज के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, कल्चर के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, in each and every walk of life you will see that the world is assimilating, integrating. What is happening? Integration of the states, free flow of trade, the cost, free flow of trade and market, world economy. Today, advanced countries and developing countries, accepting the underdeveloped states, developing and developed countries, they imagine, value their national budget with the global economy. The budgets are being compared with the global economy, not of national economy. तो ये ग्लोबलाइजेशन है, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, सूचनाएं, इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ। अब जब हम कारोबार हम अगर फैला देंगे, ग्लोबलाइजेशन लाएंगे, सब ओर से डायमेंशंस, ईच एंड एवरी डायमेंशन ऑफ लाइफ देयर इज ग्लोबलाइजेशन, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, positive or negative both. The first effect is that the sovereignty laws are unable to deal with global problems or global issues or global legal problems. That's why we now require transnational law. नेशन से बाहर काम करने वाला कानून, ट्रांसनेशनल, नेशन की सीमाओं को पार कर बाहर निकलने वाला कानून कार्रवाई के लिए। ट्रांसनेशनल लॉ का डेवलपमेंट कितना हो गया है या किस तरह से हो रहा है, एक तो ये विषय पढ़ने का है। इन द ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड, हाउ मच द ट्रांसनेशनल लॉ इज developed or developing, or there is future of transnational law. What is the future of it? पहला तो ये देखना है। फिर हमको सेकेंडली ये देखना है कि जब हमने मानव समाज ने, विश्व के मानव समाज ने, विश्व बिरादरी ने जब ये रिजॉल्व किया कि भाई हमको अब जो है ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड के एरा में आना चाहिए। एरा रहे, एरा माने युग, मनुष्य समाज के तमाम प्रकार के युग रहे हैं, एक ही युग में तरह तरह की व्यवस्थाएं रही हैं, नए नए ट्रेंड शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर हम 17वीं शताब्दी से चलें तो हमको ये दिखाई देगा कि सबसे पहले स्ट्रगल करके मानव समाज ने, वर्ल्ड पॉपुलेशन असेंबलिंग टुगेदर, डिसाइडेड दैट देयर शुड बी स्टेट सिस्टम फॉर रूलिंग दी और गवर्नेंस, फॉर रूलिंग दी पॉपुलेशन विद इन ए टेरिटरी विद ए गवर्नमेंट। sovereignty system or state system is a perfect system, and that state system came in the world in three basic steps, step by step. सबसे पहले स्टेट लाने में दिक्कत आई, रातों रात नहीं आया स्टेट व्यवस्था। नेशनलिटी
सॉवरेनिटी, गवर्नेंस ऑफ ए नेशन, ये व्यवस्था लाने में समय लगा। 3 फेजेज हैं इसके, अलग अलग पीरियड, एंशियंट पीरियड, मेडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। स्टेजेज, स्टेट सिस्टम को स्टैब्लिश करने में समय लगा। फिर आ गया स्टेट, जब बन गए, जब स्टेट बन गए, अब उन अपना अपने संविधान हो गए, अपनी व्यवस्था हो गई, तो फिर इंटरनेशनल लॉ की जरूरत पड़ी स्टेट्स को गवर्न करने के लिए। The international law was required, and for that very purpose, UN, United Nations, it was established in 1948 during that. And international law, the first law, if you go through UN resolutions, that is fulfillment of human rights, the first law. नाम क्या है? Universal Declaration of Human Rights Charter 1948। इस चार्टर में 32 राइट्स हैं, इंडिविजुअल के, पीपुल के, ग्लोबल हैं, ग्लोबल माने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त, रिकॉग्नाइज राइट्स, और उसके लिए फोरम्स भी बना रखे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बना रखा है, रीजनल स्तर पर बना रखा है, यूरोपियन यूनियन में बना रखा है, फ्रांस में, जर्मनी में, हर एक के अपने अपने कानून भी हैं हर देश के। और द फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स और implementation of Universal Declaration of Human Rights 1948, each and every nation having its Human Rights Commission, यानी नेशनल में भी है, क्षेत्रीय भी है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कमीशन है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के इस चार्टर को, जो पहला है, इस चार्टर को अभी तक राज्यों ने, राष्ट्रों ने, देशों ने, सॉवरेनिटीज ने लागू नहीं कर सका है। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ये सब इनकी रिपोर्ट्स हैं। ये हम नहीं कह रहे कि भाई ये क्या नहीं हो पाया, एक्विजिशन ह्यूमन राइट्स हम फुलफिल नहीं कर पाए, और ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। भाई जब ग्लोबल कानून था, जिसको आज हम कह सकते हैं कि वो अब, लेकिन जो इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत कानून बनाए जाते हैं, चाहे रेजोल्यूशंस हों या कन्वेंशंस हों या चार्टर हों या किसी भी तरीके से टीटी के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड कोई बात हो, सार्वभौमिक टीटी भी होती हैं, तो ऐसे जो भी रेजोल्यूशंस, इंटरनेशनल रेजोल्यूशंस हैं, वो सब नॉर्म्स हैं, नियम हैं। उसके बाद उन नियमों को लागू करने के लिए हमारे पास संस्थाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत, जैसे यूएन है, जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है। मॉनिटरी के लिए है, मॉनिटरी अरेंजमेंट के लिए हमारे पास वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। और उद्योग को आज की तारीख में ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड के भीतर उद्योग को मैनेज करने के लिए WTO है। ऐसे तमाम इंस्टीट्यूशंस ये स्टेट सिस्टम के भीतर ही बने हुए हैं। लेकिन 2 प्रकार के विचारक हैं ग्लोबल जस्टिस से रिलेटेड। एक वर्ग है जिसको हम नेशनलिस्टिक कैरेक्टर का बता सकते हैं, नेशनलिस्टिक व्यू थिंकिंग, नेशनलिस्टिक थिंकिंग। नेशनलिस्टिक थिंकिंग उन लोगों की ज्यादा होती है जो उनके कारोबार अच्छे चले होते हैं, जैसे चाइना है, रशिया है, कम्युनिस्ट स्टेट्स जहां भी हैं, उनके यहाँ राइट्स नाम की कोई चीज है ही नहीं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन उनके लिए होना न होना बराबर है, उन्होंने कमीशन भी नहीं बना रखा, उनके राइट्स नहीं है।
उनको टोटलिटेरियन स्टेट्स कहा जाता है। इन द वर्ल्ड टुडे द टोटलिटेरियन स्टेट्स दे आर वेरी वेरी रिच, having veto powers in international institutions, veto power, rich, but their people having no right, only duty. Basic principle, constitutional principle of the country, totalitarian state, communist system of governance, never recognize right to development, personal, private, individual right to development. They do not recognize. And right to development is that one within which all your human rights are covered. तो ये कहानी ऐसी है। ट्रांसनेशनल लॉ में हमको ये देखना पड़ेगा कि जो वर्तमान में ग्लोबल, जिसको हम ग्लोबल जस्टिस एंड ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस, ब्रिटन वुड्स, क्या बोला? ब्रिटन वुड्स, ब्रिटन, BRITTON, वुड्स, WOODS, ग्लोबल जस्टिस एंड दी ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस। ये कौन से हैं भाई? जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस को रेगुलेट करते हैं। आज की दुनिया इकोनॉमिक दुनिया है, आर्थिक युग है। विश्व आर्थिक व्यवस्थाओं से ज्यादा, आर्थिक व्यवस्थाओं में ज्यादा उलझा हुआ विश्व का मानव देश। लॉ एंड जस्टिस को वहां उसमें तलाशना है कि वो अपना कैसे, कॉमर्स वालों ने कारोबार बढ़ा लिया और कॉमर्स आपका पूरा वर्ल्ड में फैल गया, लो बढ़िया होगा। आर्थिक समृद्धि आई या नहीं आई, किसको आई, किसे आई, और जो समृद्धि का धन था क्या हुआ, नीडफुल लोगों तक पहुंचा, सहभागिता, इक्वालिटी, जिसको हम लोग कहते हैं भाई सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, ये जस्टिस है। पॉलिटिकल इक्वालिटी, अब बोर्ड बराबर है। तो इक्वालिटी इज द क्राइटेरिया फॉर मैपिंग द रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी। अब कंट्रीज की सिचुएशन अगर देखें पूरे वर्ल्ड की, तो जिसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं, ज्यादातर गरीबी तो अमेरिका में भी होगी, वहां के देश के अनुसार, लिविंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार कोई आदमी गरीब हो सकता, लेकिन इन गरीब, वहां के गरीबों की कोई गिनती नहीं है। सरकार वहां भूखा किसी को नहीं मरने देती है। अनएम्प्लॉयमेंट इतना देता है कि वो आराम से जी सकता है, बाकी तो अपना कर खा लेता है। अलाउंस इतना देता है कंट्री कि अपनी जरूरत पूरी कर सकता है। लेकिन जो डिप्राइव्ड 40% जिसका जिक्र किया, पॉवर्टी स्ट्राइडन पीपल, ये थर्ड वर्ल्ड में है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के छोटे छोटे देश, यहाँ अभाव है और ग्लोबलाइजेशन का यहाँ कोई लाभ नहीं मिला है। रेजोल्यूशन तो ये था कि आर्थिक समृद्धि आएगी, सभी वर्गों के देशों के लोग डेवलपमेंट करेंगे, तरक्की होगी, आर्थिक समृद्धता से तरक्की होगी, इसलिए मार्केट ओपन करो, लिबरल पॉलिसीज लाओ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब ढीला कर दो, नेशनल लॉज को कमजोर बना दो, कंपनी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ,
सेल्स ऑफ गुड्स लॉ, ये लॉ वो लॉ, जो हम सब कमर्शियल हमारा हो गया पूरा पूरा ग्लोब, एक फ्री फ्लो हो गया, टैक्स वसूलना तक मुश्किल हो जाता। एक कंट्री अमेरिका में मान लीजिए किसी का बड़ा एमएनसी मल्टीनेशनल और टीएनसी ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन, अगर ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन का हेड ऑफिस अमेरिका में है और उसका कारोबार विश्व की तमाम देशों में फैला हुआ है, ट्रांसनेशनल है। ट्रांसनेशनल मीन्स several countries, the business is spread over. And different types of businesses are there. Different types of businesses. Multinationals are difficult to be regulated. अब इनको रेगुलेट करना पड़ता है, ये बेईमानियां करते हैं, 10 देशों से कमा लेगा और केवल अमेरिका को टैक्स देगा, बाकियों को नहीं देगा। अमेरिका बोलेगा भी नहीं कि उसको तो दिया है। अब जिन जिन देशों में बिजनेस किया वहां से मुनाफा कमा लाया, वहां का सारा टैक्स नहीं जमा किया। 10 देश वो थे, 11वां अमेरिका था, अमेरिका का हिस्सा दे दिया। अमेरिका ने उन बाकियों को क्यों नहीं दिया, कभी नहीं पूछा। टैक्स तो एक बड़ी भारी समस्या है, ग्लोबल प्रॉब्लम टू बी रेगुलेटेड। एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अर्न फ्रॉम द ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड, distribution of that particular wealth, profit, benefits, they should be distributed because this system is distributive justice system. and आर्थिक जस्टिस अगर आपको बांटना है तो जो वेल्थ कमाया भैया पिछले 30 वर्षों के भीतर ग्लोबलाइजेशन की वजह से, जो पिछले 30 वर्षों के भीतर ओपन मार्केट से धन आया, वो धन का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं हुआ मुनाफे का? यहां तक कि गवर्नमेंट्स के टैक्स तक नहीं गए और कानून है नहीं, कर्म करने के लिए कानून नहीं है, क्योंकि नेशनल लॉ जिन्हें कर्म नहीं कर सकते। उदाहरण भी देख लो, उदाहरण देखो, अभी ट्विटर वाले ने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आईटी रूल्स को मानने से इनकार कर दिया। 3 महीने हो गए हैं, ट्विटर ने अपना कोई ऑफिसर इंडिकेट नहीं किया है कि ये हमारा जो है जवाबदेह अकाउंटेबल व्यक्ति है। भारत सरकार ने कहा कि ट्विटर इज वेरी मल्टीनेशनल, यू नो, इन ईच एंड एवरी कंट्री इट इज अवेलेबल। चाइना वाले ने ट्विटर को नहीं माना, लेकिन जितना जहां भी ट्विटर है, ट्विटर का बड़ा रोल है, बड़ा कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है। अब ये कंपनी जो है भारत के नेशनल लॉज को मानने से इनकार कर गई। या हम तो, क्योंकि ये भारत सरकार को बदनाम कर रहा था, उसमें एक गैंग काम कर रहा है, अब वो गैंग को पकड़ना है, इसलिए जो है लायबिलिटी बताओ भाई तुम्हारा कौन ऑफिसर है जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी जाए। तो उन्होंने ऑफिसर का नाम अभी तक नहीं बताया। एक पुराना वाला था, वो नौकरी छोड़ के चला गया, उसकी जगह दूसरा नहीं आया, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्ट नहीं की है। कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब चलता रहता है। तो ये मेरे भाई, आपको सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ के अंदर इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ये सबसे ज्यादा डेवलप हुए हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, अब देखिए दूसरा रिलेशन, इंटरनेशनल पॉलिटिकल रिलेशन, इंटरनेशनल कल्चरल रिलेशन, इंटरनेशनल सोशल रिलेशन, ये जो डायमेंशंस हैं, इंक्लूडिंग फैशंस ऑफ द वर्ल्ड, ये जो डायमेंशंस हैं, इनको अभी हम उतना ज्यादा तजब्बुत इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो सब जो सबसे तेजी से ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है वो है कॉमर्स का फील्ड, व्यापार।
और व्यापार में भी कानून चाहिए रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि व्यापारी तो बेईमानी करता है, टैक्स ही नहीं दिया ना। बताया मेरे को, एक उदाहरण दिया था। रशियन कंपनी ऐसी है, कितनी तो फेक कंपनीज होती हैं, हवाला तक का धंधा करती हैं। हवाला जानते हो? बिल्कुल अनजान देश में पैसा चला गया किसी कंपनी को, और उसने मुस्तकिल व्यक्ति जिसका नाम है उस तक पहुंचा दिया। देखिए, बीच में पता तक नहीं चला मनी का। ब्लैक मनी के धंधे होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा बड़ा कंट्रोल करना बड़ा मामला है। आप उसको, भारत के कानून मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने में असमर्थ हैं। वर्ल्ड में जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है, अपने देश से बैंकों का रुपया हजम करने के बाद जो यहाँ के मल्टीनेशनल्स थे, अपने कुछ माल्या भालिया, नीरो पीरो जो भी हैं, ये सब भाग गए विदेशों में। वहां चले गए जहां से इनको आप बुला नहीं सकते। ऐसे कंट्री को चुनते हैं जहां आपका संधि नहीं है, रिपेट्रिएशन करना पड़ता है, कानूनी तरीके से जजों से अनुमति लेनी पड़ती है। एक आदमी ऐसे देश में चला गया, असलम ले लिया, जो हमारा मित्र देश नहीं है, तो वो तो भैया अलाउ ही नहीं करेगा, क्योंकि ये जो रिलेशंस हैं, पॉलिटिकल रिलेशन, इंटरनेशनल पॉलिटिकल रिलेशंस, दे आर बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप। जो एनिमी कंट्री है वो फ्रेंडशिप में नहीं आता, तो वहां घुस जाएगा, वहां से लाना मुश्किल है ना। अब एक बात है, वैसे देखिए, विश्व के सभी धनाढ्य लोगों ने भारत सहित स्विट्जरलैंड में रुपया जमा कर रखा है, स्विस बैंकों, जिसका नाम है ब्लैक मनी। ब्लैक मनी का मतलब यह कि टैक्स पेड मनी नहीं है और कुछ ब्लैक नहीं है, जहां से ला लाया, लेकिन सरकार को कुछ नहीं दिया, वहां डाल दिया। स्विस बैंक के माध्यम से स्विस गवर्नमेंट को तो देता है, क्योंकि उन्होंने नियम बना रखा है कि हम आपके बारे में बताएंगे नहीं किसी को, आप हमारे यहाँ रुपया डाल दो और जब तक चाहो रखे रहो, हम आपके बारे में बताएंगे नहीं। कोई स्विस ही नहीं है, और भी छोटे छोटे ऐसे बहुत से देश होंगे अरब में। अरब में तो बहुत पैसा है, तो वहाँ बड़े बड़े, आप किसी भी छोटे छोटे, किसी भी, वहाँ कोई बहुत बड़े बड़े देश नहीं है अरब में, लेकिन कोई भी छोटे देश ले लो, धनाढ्य मिलेगा। शेर पालने लगे, उनके शौक भी दूसरे। तो अब वहां भी ये सब बैंक हैं, जरूरी नहीं कि स्विस में ही हो। अब स्विस बैंक में अगर मान लीजिए रुपया है, अरबों खरबों में मामला है, इलेक्शन तक इस पॉइंट पर लड़ा गया है कि हम काला धन वापस लाएंगे, और कोई नहीं लाया, सबका वही है। अब उसमें क्या है, उन्होंने लॉ बनाया है कि भाई हम आपकी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे आसानी से। बैंक में हर एक ने वहां रख दिया बस। कौन सा मनी रखा है? ब्लैक मनी, माने अनपेड टैक्स कैपिटल, अनपेड टैक्स कैपिटल। अब वो अरबों खरबों में हुई, मतलब भारत सरकार का इतना तो टैक्स का ही मामला है, या किसी अन्य देश का भी यही लो, सब देशों में लोगों ने रखा होगा। हमारे यहाँ तो सोनिया गांधी जैसे नेता तो सभी जगह है ना, सबसे धनाढ्य महिलाओं में उसका नाम सबसे ऊपर है। अब कहाँ से धनाढ्य तुम क्यों बन गए? फिर उसका वो राहुल हो गया। पिछली बार की सरकारों में सारा पब्लिक मनी ये उठा ले गए और इन नवा शीशों में डाल दिया। मायावती के पास तक निकला 114 करोड़ रुपया, बताओ मायावती। मुलायम सिंह का कौन पूछे? तो ये सब काला धन जो है, ये किसका है? पब्लिक मनी, अनपेड टैक्स। और इसको हम किसी कानून से हम इसको कर्व नहीं कर सकते। वर्ल्ड प्रॉब्लम है ये, जस्टिस वाली बात जो है। पब्लिक मनी को लोगों ने अपने खातों में डाल दिया स्विस। अब क्यों भाई, तुम ऐसा कानून के खिलाफ क्यों नहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर? स्विट्जरलैंड का जो लॉ है,
तो इसको क्यों नहीं अमेंड कराते, खत्म करो इसको, अपने आप वहां के फिर उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगी मनी की। लेकिन नहीं, वहां की इकोनॉमी इसमें भेज दे, छोटा सा देश है। तो ये सब बातें हैं। तो तात्पर्य यह है कि डेवलपमेंट होना चाहिए और इनइक्वालिटी मिटनी चाहिए। ग्लोबल जस्टिस तब आएगा, एक तो डेवलपमेंट हो, तो दूसरा जो है, जो असमानता है, असमानता तो इतनी खतरनाक होती है। अमेरिका जैसे देश में इनइक्वालिटी, इक्वालिटी क्या मतलब इन दो शब्दों का, बड़ा सरल शब्द है। इक्वालिटी, इनइक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स अमंग द इक्वल्स the law should be equal. Among the equals, the law should be equal. And it should be equally administered. Among the equals, law should be equal and should be equally administered. What is law? Law is rights and liabilities. The purpose of law is to regulate rights and liabilities of the individual. So the law defines the rights and defines the liabilities and provides the procedure for obtaining the right or imposing the liability. This is what law fulfills the purpose. Defining rights and liabilities. Among the equals, the rights should be equal. Rights should be equal. Among the equals, जो एक जैसे हैं, एक स्टेटस के हैं, जिनका एक क्लास है, कैटेगरी है, जीनस है, नेक्सस है, जो एक वर्ग के हैं, क्लासिफाइड इन ए पर्टिकुलर, क्लासिफाइड क्लास, वर्ग। तो जो एक वर्ग के हैं, जैसे IAS इज ए वर्ग, और इसका DM बनेगा, और एक उसी के ऑफिस में पियोन। There are two categories. One is of fourth class and the first is of the first class. First class category, class, and the fourth class category. ये जो हमारा क्लासिफिकेशन है, एक इक्वल्स हैं एक कैटेगरी के, उनके राइट्स एंड लायबिलिटीज एक कैटेगरी के होंगे, और एक फोर्थ कैटेगरी का क्लास है, उसके राइट्स एंड लायबिलिटीज उसी कैटेगरी के सबके समान होंगे। Among the equals, the law should be equal and it should be equally administered. और वो समान तरीके से लागू होंगे। ये इक्वालिटी है। तो विश्व में हमको ये देखना पड़ेगा कि जो लॉ ऑफ स्टेट्स है, उसका युग अब समाप्त हो गया है। लगभग ये दिखाई दे रहा है कि कॉमर्शियल फील्ड में स्पेशली हमको ट्रांसनेशनल लॉ की जरूरत है। ट्रांसनेशनल लॉ क्या करेगा? वो जो मल्टीनेशनल्स हैं, ट्रांसनेशनल कंपनीज हैं, या बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हैं, एनजीओज हैं, बड़े बड़े एनजीओज, वर्ल्ड वाइड काम करने वाले एनजीओज हैं, या और कोई कंपनी कॉरपोरेशन जिसका विस्तार अपने देश से बाहर है, ऑर्गेनाइजेशन व्हाटएवर,
सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी हैं आजकल, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। कोई बड़ा भारी कारोबार या मशीनें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, टेक्नोलॉजिकल हेल्प, कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर्स, technological assistance. Several companies they are working, software, hardware. तो कारोबार के क्षेत्र में जब हम तमाम कारोबारी होते हैं, वो भी कुछ तो जानबूझकर करते हैं, उससे दूसरे का नुकसान होता है, रॉन्गफुल एक्टिविटीज और इलीगल बिजनेस प्रैक्टिसेज और प्रैक्टिसेज, इलीगल बिजनेस प्रैक्टिसेज। जब वो इलीगल बिजनेस प्रैक्टिसेज करते हैं तो उनको कर्व करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। कानून का ये काम है, अदरवाइज जो जिसको क्षति पहुंचा देंगे उस वर्ग का हनन होगा, नुकसान होगा, अधिकार मारा जाएगा। तो इसलिए जो है इन बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को, कॉरपोरेशंस को, बोर्ड्स को, सर्विस प्रोवाइडर्स को और एनजीओज को, इनको लॉ द्वारा कंट्रोल करना है। और जहां इनने क्षति पहुंचाई है, डिस्प्यूट रिजॉल्व करके जिसका जो ड्यू है, राइट, वह उसे दिलवाना है। यह है ग्लोबल जस्टिस। ग्लोबल जस्टिस, इसके लिए ट्रांसनेशनल लॉ की जरूरत पड़ रही है। और ट्रांसनेशनल लॉ का जो डेवलपमेंट है, ये आपको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। धीरे धीरे जैसे एक दो वर्ग हो गए, कॉस्मोपॉलिटन्स, जो थिंकर कॉस्मोपॉलिटन्स हैं ग्लोबल जस्टिस के फील्ड में, जो विद्वान कॉस्मोपॉलिटन हैं। क्या हैं? कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन माने पूरे विश्व को एक दृष्टि से देखने वाले, पूरे विश्व समाज को एक सोसाइटी समझने वाले, वो कहेंगे, उनको कहेंगे कॉस्मोपॉलिटन। दूसरे हैं नेशनलिस्ट थिंकर, जिन्होंने लिखा है ग्लोबल जस्टिस पर। इन दोनों में फर्क है। एक पॉपुलिस्ट हैं, एक सिंगुलरिस्ट हैं। पॉपुलरिस्ट माने पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को एक ग्लोब के भीतर एक समान दृष्टि से देखने वाले, कॉस्मोपॉलिटन्स। अब कॉस्मोपॉलिटन्स जो है, दूसरे नेशनलिस्ट, सॉवरेंटी कंसेप्ट जिनको आता है, इनमें भेद ये है कि नेशनलिस्ट कहते हैं कि भाई ये ग्लोबलाइजेशन समस्या बन रही है, इससे कोई लाभ नहीं हुआ। कॉमर्शियल भले ही मार्केट खुल गए हों, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा इज देयर, दैट्स वेरी गुड। वेल्थ may be accumulated but it is not distributed among the needy। तो ये भी फेल्योर गया। जो डिसएडवांटेज कंट्रीज हैं उनको ग्लोबलाइजेशन, वेल्थ का ग्लोबलाइज वर्ल्ड ने जो कमाया, तो उसका जो वेल्थ आया, उस वेल्थ में उसको शेयर नहीं मिला। ये निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, जिसे नेशनलिस्टिक व्यू वाले लोग, विद्वान, वो ये कहते हैं जी ग्लोबलाइजेशन में हमें बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन जो कॉस्मोपॉलिटन है वो क्या कहते हैं? विद्वान लोग कहते हैं साहब ग्लोबल गवर्नेंस लाई जा सकती है। ग्लोबल गवर्नेंस,
वो ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पर विचार किया जाना चाहिए, ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पर विचार किया जाना चाहिए। और लीगल प्लूरलिज्म, लीगल प्लूरलिज्म, इस विषय पर रिसर्च की जानी चाहिए। लीगल प्लूरलिज्म, तो ये अलग अलग विचारधाराओं के लोगों की बातें हैं, लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि ये दोनों अगर पूरी इंटरनेशनल सोसाइटी के बारे में सोचें, इक्वलिटी के बारे में सोचें, डेवलपमेंट ऑफ ऑल given parts of the world. Today, the world is divided in 7 continents. Each and every country of a particular continent should be benefited by the globalization. And if it is not being done in such a way in globalizing era, then the law should be, it should be transformed. Transnational law is required. National laws are incapable to curb the world problem. That's why transnational law is required. And how much transnational law till today has been developed, or what are the problems in developing transnational law, and what is the future of global governance? Is there possibility of constitution of the world? What are the pro and against idea, debate? ये सब डिस्कशन है, चर्चा। जो चर्चा होती है वो, अब देखिए, आपको ये मालूम होना चाहिए 21st सेंचुरी यूरोपियन कंट्रीज ने 28 देश, यूरोपियन कंट्रीज ने 28 देशों ने अपना एक संगठन बना लिया, उसका नाम हुआ यूरोपियन यूनियन। वो संगठन क्या है भाई? कॉमर्शियल पहले बना कि हमारे यहाँ एडजॉइनिंग सड़कें सब खुली रहेंगी, एयरवेज, रेलवेज, रोडवेज, ऑल ट्रांसपोर्टेशन इज फ्री फॉर पर्पजेज ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटीज। फ्री ट्रांसपोर्टेशन हो गया 28 देशों में एक साथ। मूवमेंट ऑफ पीपल फ्री, नो पासपोर्ट इज रिक्वायर्ड। चलो बढ़िया भैया। एंड सिंगल करेंसी, वन नोट everywhere in the country, 28 countries। आना जाना, नौकरी इधर की उधर, उधर की इधर, फ्रांस का जर्मनी में, जर्मनी का फ्रांस में, दूसरे का दूसरे में, तीसरे। मिक्स्ड सोसाइटी इज लिविंग इन ऑल 28 यूरोपियन कंट्रीज, मिक्स्ड सोसाइटी इंक्लूडिंग अरब्स एंड एशियंस लिविंग। लेकिन धीरे धीरे क्या पता आपको क्या हुआ? धीरे धीरे ये हुआ कि यूरोपियन यूनियन ने अपने पार्लियामेंट बना ली, 28 देशों की एक पार्लियामेंट हैविंग पावर टू मेक लॉज। पार्लियामेंट इज एन इंस्टीट्यूशन which is recognized as of authentic legitimate lawmaker, legitimate। अब ये एक लॉ मेकर बना दिया उन्होंने 28 देशों ने, फिर एग्जीक्यूटिव रख लिए। उसके बाद ब्रिटेन के यहाँ राजनीतिक इशू उठ गया, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू फॉर फ्यूचर गवर्नेंस ऑफ ब्रिटेन। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल इशू था मालूम आपको?
ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ। द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन, द प्रिंसिपल, फिफ्थ ट्रेडिशनल प्रिंसिपल, दैट पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम। ब्रिटिश पार्लियामेंट सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है। दूसरा रूल ऑफ लॉ, ब्रिटिश रूल ऑफ लॉ, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। अब जब यूरोपियन पार्लियामेंट ने ह्यूमन राइट्स का एक 1998 में लॉ बनाया, यूरोपियन यूनियन ने ह्यूमन राइट्स लॉ 1998, और ब्रिटिश पार्लियामेंट से ये कहा कि आप अपना ह्यूमन राइट जो है ब्रिटेन का, ये इस तरह से कोडिफाइड करो जैसे यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट ने बनाया है, दैट ह्यूमन राइट एक्ट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन ब्रिटेन बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। पॉलिटिकल इशू बन गया, और ये इशू बना ब्रिटेन में कि भैया हमारा तो ये किसी के अधीन का तो मामला ही नहीं है, ब्रिटिश पार्लियामेंट तो सुप्रीम है, वो किसी के अधीन नहीं हो सकती, हमारी सॉवरेनिटी का कैरेक्टर है। ब्रिटिश पार्लियामेंट सॉवरेन, पावरफुल, ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट, तो इट कैन नॉट बी सबऑर्डिनेट टू एनी अदर पार्लियामेंट। तो ब्रिटेन में डिस्कशन शुरू हो गया, वोटिंग हुआ कि हमको यूनियन का मेंबर रहना चाहिए या नहीं। जो यंग जनरेशन वाले थे, यंग जनरेशन वाले, उन्होंने तो कहा कि भाई हम जो है यूरोपियन यूनियन के पार्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारी ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो सुपीरियर है। पुराने वालों ने कहा कि हम यूनियन के मेंबर बने रहें। वोट में कुछ जैसे 48 और 50, 51% वाला आ गया, तो एक प्राइम मिनिस्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ब्राउन इस्तीफा दे दिया कि भाई मैं यूरोपियन यूनियन का मेंबर ब्रिटेन नहीं रहेगा, ये वोट ज्यादा आ गया है और मैं रहेगा वाला था, इसलिए मैं हार गया और मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। ये है ब्रिटिश कैरेक्टर। अब इंडिया में अगर किसी को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी मिल जाए तो हाथ पैर भी अगर खींचने पड़े लोगों को, वो कभी हिलेगा नहीं। कैरेक्टर की बात बता रहा हूं, पॉलिटिकल कैरेक्टर। और आज ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन के 28 देशों में से अलग हो गया है, केवल अपने सैद्धांतिक संवैधानिक सिद्धांत के आधार पर। फिर आप ब्रिटिश पार्लियामेंट हमारी सुपीरियर रहेगी। तो ये बड़े विषय आप लोगों को पढ़ने पड़ते हैं, जानने पड़ते हैं। अरुण आज इतना ही कर लेते हैं, क्यों? यस सर, हो गया बेटा? हाँ सर, थैंक यू सो मच सर फॉर सच अ इंसाइटफुल लेक्चर, एंड we'll meet in next lecture.